Hello everyone, welcome to the economics zone. In this video, I am going to cover the types of elasticity, price elasticity of demand, price elasticity of supply, cross price elasticity of demand, and income elasticity of demand. इलास्टिसिटी पार्ट वन वीडियो में मैंने कवर किया है व्हाट इज़ इलास्टिसिटी एंड elasticity coefficient. That is also very important video, so if you have not gone through that, then please go through it and come back to this video. So let's get started with the price elasticity of demand and all the different types of elasticity. So as we know that in law of demand there is an inverse relationship between price and the quantity demand, right? That's why if the price of any commodity increases, then demand of that product decreases, right? That's why we can see the downward sloping demand curve. All right. Similarly, in law of supply, we can see there is a direct relationship between price and supply. For example, if the price of commodity increases from P1 to P2, then the supply will also increase, right? That's why there is a direct relationship between price and the supply, and hence the supply curve is upward sloping, right? So we need to have an idea of law of demand and law of supply before getting into the concept of elasticity. So let's get started with price elasticity of demand. इसमें हम लोग देखते हैं कि क्वांटिटी डिमांड किस तरह से चेंज होता है अगर प्राइस चेंज हो जाए तो, ठीक है। तो इन अ सिंपल वर्ड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग देखते हैं रिस्पॉन्स कंज्यूमर का कि किस तरह से प्राइस अगर चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांड भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो मान लीजिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि प्रीवियसली डिमांड था Q1 और प्राइस था P1, but after change in price from P1 to P2, the quantity demand also changes from Q1 to Q2, right? So how can we calculate the percentage change of quantity demand? So percentage change can be calculated through this percentage. For example, we will going to calculate percentage change of quantity demand, right? So here Q2 minus Q1 divided by Q1 into 100. So this will be the percentage चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ओके। तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस को भी हम लोग कैलकुलेट इसी तरह से करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डोंट मेक एनी मिस्टेक वाइल कैलकुलेटिंग दिस, राइट। P2 minus P1 divided by P1 is percentage change in price. यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आया है -20% और परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है 10% है। 10% पॉजिटिव है बिकॉज प्राइस चेंज जो है वो इंक्रीज किया है, दैट्स वाई हियर द साइन इज पॉजिटिव एंड हियर साइन इज नेगेटिव बिकॉज प्राइस के इंक्रीज करने से क्वांटिटी डिमांड जो है डिक्रीज किया है, राइट। दैट्स वाई वी आर गेटिंग द नेगेटिव 2 वैल्यू। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि परफेक्टली इन इलास्टिक में अगर मान लीजिए कि इलास्टिसिटी कोफिशिएंट 0 आ जाता है तो उस कमोडिटी का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
जीरो आया तो हम लोग उस प्रोडक्ट का डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक मानेंगे। सिमिलरली अगर लेस देन वन आता है तो दैट प्रोडक्ट विल बी रिलेटिवली inelastic, and if we will get the value of 1 then it will be a unit elastic, and if we will get the value more than 1 then we will say that that product is relatively elastic, and if we will going to get the value of infinity then we can say that that product will be perfectly elastic, right? Now coming to the part of price elasticity of supply, प्रीवियसली हम लोगों ने क्या देखा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो वहाँ पे हम लोग वहाँ हम लोग देखे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो डिमांड के बारे में हम लोगों ने बात किया। यहाँ पे सप्लाई के बारे में बात करेंगे कि हाउ आवर क्वांटिटी सप्लाई विल चेंज विथ चेंज इन प्राइस। एज वी नो दैट जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करेगा तो सेलर के लिए प्रॉफिट है कि वो अपना प्रोडक्शन को बढ़ाए और सप्लाई ज़्यादा करे। दैट्स वाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में जनरली ये होता है कि अगर प्राइस चेंज होता है, अगर प्राइस इंक्रीज करता है तो क्वांटिटी सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज। सिमिलरली इफ प्राइस विल डिक्रीज देन क्वांटिटी सप्लाई विल ऑल्सो डिक्रीज। ओके, तो हियर हम लोग मेजरली क्या देखते हैं कि सप्लाई किस तरह से चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, एंड इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी सिमिलर है। जैसे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट किए, ठीक उसी तरह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को भी कैलकुलेट करेंगे। पहले में हम लोगों ने देखा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड था। चूंकि हम लोग यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ रहे, दैट्स वाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। और इसी के हिसाब से हम लोग इलास्टिसिटी कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे, एंड ऑन दैट बेसिस हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट परफेक्टली इनइलास्टिक है या रिलेटिवली इनइलास्टिक है, यूनिट इलास्टिक है या फिर रिलेटिवली और परफेक्टली इलास्टिक है। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दिस कंसेप्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि प्राइस ऑफ कमोडिटी ए चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड बी कैसे चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला कि प्राइस जो है गुड बी का चेंज हो जा रहा है, राइट। तो क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज हो रहा है गुड ए का, इसको और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी। मान लीजिए टी का प्राइस इंक्रीज कर जा रहा है तो कॉफ़ी का डिमांड क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ओके, मैंने क्या बताया आपको, फिर से वंस अगेन, अगर टी का प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो कॉफ़ी का डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इस रिस्पॉन्स को हम लोग क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग जनरली गुड का रिलेशन देखते हैं कि वेदर गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइट। तो मान लीजिए अगर हम लोग क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला और हम लोगों के पास नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। इफ द साइन विल बी नेगेटिव देन वी कैन से दैट द गुड विल बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है नोट में कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन जीरो तो गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉफ़ी एंड सुगर आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दैट्स वाई इफ वी विल गेट द साइन नेगेटिव साइन then we can say that goods are complementary goods. Similarly, अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव आ जाएगा देन वी कैन से दैट
goods are substitutes. Here in my example, I have mentioned you that if the tea price of tea will increase, then demand of coffee will increase. So what we will see here कि tea and coffee are substitutes. अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो आ जाता है, then we can say that goods are unrelated, they are neither substitute nor complements. Okay, so in this way we are going to calculate the cross price elasticity of demand. Okay, now coming to the last types of elasticity, that is income elasticity of demand. In each case, what we have seen previously, that all the quantity demand or supplied is related with the prices. ठीक है, if price will increase, then quantity demand and quantity supply will also increase. But in this case, income elasticity of demand, we will see the change in quantity demand in terms of change in income. Okay, so we need to keep in mind that while calculating income elasticity of demand, we have to measure the change in quantity demand with respect to change in income. So income part is very very important. Okay, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का इनकम जैसे जैसे बढ़ता है या घटता है, तो किस तरह से हम लोग क्वांटिटी डिमांड जो है चेंज करते हैं. ओके, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला we will calculate the income elasticity of demand. Okay, and on the basis of the sign we will get while calculating the income elasticity of demand, we will get to know that whether goods is inferior goods, नॉर्मल गुड्स, लग्जरी गुड्स. ओके, सो मान लीजिए कि आप इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट किए और नेगेटिव आ जाता है, मान लीजिए -1, -2, -3, वॉट एवर इट इज़ कमिंग, लेकिन माइनस में आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ रहा है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भी गुड्स है वो इन्फीरियर गुड्स है. ठीक है, तो जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज करेगा, आप इन्फीरियर गुड्स का डिमांड जो है डिक्रीज करेंगे. इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं फॉर आवर डे टू डे लाइफ. अगर आपके पास इनकम कम है तो आप फुटपाथ से चीज़ों को खरीदते हैं, लेकिन जब आप लोगों का इनकम बढ़ता है तो आप लोग ब्रांडेड कपड़ा पहनना पसंद करते हैं. दैट्स वाई वी कैन से दैट फुटपाथ में जो भी चीज़ें हैं, इट्स अ काइंड ऑफ इन्फीरियर गुड, बिकॉज आपका इनकम बढ़ता है तो आप फुटपाथ से उन चीज़ों को खरीदना बंद कर देते हैं. राइट नाउ अब दूसरा केस देखते हैं कि अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं और साइन आपका पॉजिटिव आता है, +1, 2, 3, 4, 5, वॉट एवर इट इज़. ठीक है, तो हम लोग मानेंगे दैट गुड इज़ अ नॉर्मल गुड्स. वाई? बिकॉज जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है आपका डिमांड भी राइज करता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लाइज बिटवीन 0 and 1, तो ये नॉर्मल गुड्स है, मतलब नेगेटिव नहीं रहेगा, लेकिन दैट लाइज इन बिटवीन 0 and 1. मान लीजिए 0.2, 0.3, 4, 5, 6, अगर ऐसे वैल्यू रहे तो वो प्रोडक्ट जो रहेंगे वो आपका नॉर्मल गुड्स होंगे. लेकिन ग्रेटर देन 1, इस केस में जैसे ग्रेटर देन 1, 2, 3 आ जाए, अगर क्रॉस इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1, 2, 3 आ जाए, तो हम लोग देखते हैं कि दैट products will fall under the category of luxury goods. Okay, so I think we have covered the 4 important types of elasticity: income elasticity of demand, price
cross price elasticity of demand, price elasticity of supply, and price elasticity of demand. So if you have any doubt regarding this concept, then you can reach to me through comment. Thank you so much.